Hi students, good morning once again. So let's start and complete today this particular chapter whose name was the periodic classification of elements in science, class 10th. So till now what have we studied? Till now what we have studied was the history of how this model periodic table actually evolved. We've also studied how Dauvergne and Newland and all those, Mendeleev actually contributed, what were their merits and demerits. Now let's talk about the final stuff today, the modern periodic table and the trends. And then we are going to do, certain questions and then we are going to wrap it up. Now, so remember that tomorrow it's going to be over there for the test. So be prepared. Now, let's start with the first word trend. So जैसे मैंने आपको बताया था modern periodic table में कुल मिलाकर के there are 18 groups. Groups are known as vertical columns and there are 7 periods. Now, let's start first of all with the atomic size. So how are we going to do these trends? We are going to do these trends from a period basis, that is from left to right, and on a group basis, that is from top to bottom. So please understand this. जब भी मैं कभी word बोलूँगा period, that means from left to right. क्यों? Because period are horizontal rows. They are like these lines. And what do you mean by groups? Groups are the vertical columns, which means from top to bottom. Now here comes the trick. बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर वो लोग आपकी साइंस के साथ में इंग्लिश भी चेक करेंगे. सो दे माइट आस्क यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप क्या होगा. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. टॉप टू बॉटम इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स and they are going to be shown by the vertical lines like this. Okay. Now let's start with the part of atomic size first. So let's write a particular period. Okay, now before I start this particular lecture, let's first of all try and understand the atomic table. Now guys, ये कुछ चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ ये थोड़ा सा funny आपको लगेगा, but it's just a trick to remember. But guys, this is very very important for you to learn. यदि आपने करीबन 30 एलिमेंट्स तक भी आपने लर्न कर लिए, प्रिस्क्राइब वुड बी अराउंड 35 तक, बट यदि आपने 30 तक भी यदि आपने लर्न कर लिए, गाइस बिलीव मी, इस चैप्टर में से क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता. आई कैन गारंटी यू दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पार्डन माय वर्ड्स, बिकॉज ये जो है ये केवल लर्न करने की ट्रिक है. इफ यू हैव गॉट सम बेटर ट्रिक विथ योरसेल्फ यू कैन डू इट. ओके, आप खुद से भी कर सकते हो. सो नो कंपल्शन कि आपको ऐसे ही करना है. नाउ लेट्स सी. So the first is H. Let's write somewhere over here. HE. ये first period के elements हैं, which is H and HE. Let me change the marker. So H and HE. Now learn करने का trick is very simple. मैं यहाँ पर side में लिख देता हूँ. It will be the first period. Okay. हा ही हंसने का तरीका. Boys कैसे हंसते हैं? हा 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 हा. गर्ल्स कैसे हंसती हैं? ही ही ही. दिस इज जस्ट अ लर्निंग वे. हा ही. हा स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ही स्टैंड्स फॉर हीलियम. लेट्स स्टार्ट द नंबरिंग. जो भी नंबर लोअर पे होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो भी नंबर ऊपर होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर. सो 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम नंबर 2. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज. सो व्हाट इज द लर्न करने का तरीका? हा ही, हाइड्रोजन एंड हीलियम. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज सेकेंड. ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं. ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी. Now let's start. What is this? This is the second period. Once again, only a learning way. एक चाइनीज गर्ल थी, इंडिया आती है, and इंडिया आकर के because she could not speak Chinese properly and that's the reason why she was suffering from this language problem. So her name was Li Bei. So Li Bei इंडिया आई. ली बे इंडिया आकर के उसने मटन उसका खाने का बड़ा मन किया. Now mutton is made out of the from the goat's meat. So
उसको हिंदी में बकरा बोलते हैं। सो हम लोगों को टेबल लर्न करनी है, सो वी वोंट कॉल इट बकरा बिकॉज वो भी नहीं बोल पा रही थी, तो शी कुड ओनली से बकना बकना बकरा बकना। सो बकना। ली बे, इंडिया क्या खाने के लिए आई थी? मटन खाने के लिए आई थी, विच इज मेड फ्रॉम गोट्स मीट, विच वॉज बकना। सो ली बे बकना। देन उसने पूरा उसको साफ वाफ किया, क्लीन किया, एंड क्लीन करने के बाद में उबालने लगी, एंड दैट वॉज उफने। उफानना, वो सास बहू के सीरियल देखे होंगे आपने कभी, दूध उफन गया, सो उफने। सो ली बे बकना उफने, ली बे बकना उफने। What does Li stands for? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Now ध्यान रखना, हमने फर्स्ट स्टोरी क्या थी? हंसने का तरीका, which was he, hydrogen and helium. Hydrogen being the most light gas, though lightest gas by the way. I mean hydrogen को हम normally यही यूज करते हैं because it is highly inflammable, but helium is also over there. हीलियम को नॉर्मली हीलियम बलून्स के अंदर यूज करते हैं, वो जो गुब्बारे जो ऊपर उड़ जाते हैं उनके अंदर, बिकॉज ये इनर्ट गैस है तो इनफ्लेमेबल उतना नहीं होता है, सो इट्स मच मोर सेफर टू यूज। हाइड्रोजन बहुत बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो थोड़ा बच के रहना चाहिए इससे। देन कम्स द वर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, सो बोरॉन रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होते हैं, बोरॉन रॉड्स। कार्बन टेक्निकली इस अकेले एलिमेंट के वजह से सारे बच्चों पे खतरनाक प्रेशर रहता है, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री विच डील्स ओनली विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स विल बी नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन। ओके, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, बकमिनिस्टर, फुलरीन, चारकोल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। यू, मी, सारी ऑर्गेनिक चीजें। जब भी कभी आप दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब जानते हो ना, मतलब जब भी कभी सुनोगे, कार्बन। नाइट्रोजन दी मोस्ट ग्रोथ वाला एलिमेंट, इसके बिना दुनिया में किसी भी चीज की ग्रोथ इज सिंपली नॉट पॉसिबल। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दिस एंड ऑल दैट जैज, प्रोटीन्स। जब भी आप कोई फर्टिलाइजर्स की बात करते हो तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, सो NPK फर्टिलाइजर्स, तो वो भी ध्यान रखना। सो नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन ही प्रोटीन्स के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, अमोनिया, अमोनिकल गैसेस, ओके, इन सब के अंदर Na होता है, विच इज NH3 के फॉर्म में। नाउ O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, बिकॉज आप इसी से आप सांस लेते हो, यू ब्रीद ऑक्सीजन। ओके, याद है मैंने इसका आपको बताया भी था, इसका पार्शियल प्रेशर आपके इसमें नहीं था, आई थिंक 12th में था। सो इसका पार्शियल प्रेशर इतना होता है कि ये बहुत इजीली हीमोग्लोबिन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एयर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आप जब एयर ब्रीथ करते हो तो केवल ऑक्सीजन कैरी होकर के जाता है। देन कम्स, हम लोग इसे हमेशा अपने वाले बैच में द ग्रेट मराठा बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज द ग्रेट मराठा? बिकॉज इफ यू आर गोना रीड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो मराठास वर वेरी 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 फेमस एंड वेरी फियर्स फाइटर्स, वॉरियर्स, वो बॉर्न वॉरियर्स हैं। सो फ्लोरीन वैसे ही एक वॉरियर है, उसको केवल दो ही चीजें आती हैं, आइदर ही इज गोइंग टू किल और ही इज गोइंग टू गेट हिमसेल्फ किल्ड, दैट्स ऑल। इसीलिए इसकी बहुत छोटी सी या बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इन ppm और समटाइम्स इवन इन ppb आप इसको टूथपेस्ट के अंदर डालते हो। व्हाई आर यू गोइंग टू पुट इट इनटू टूथपेस्ट? बिकॉज जब टूथपेस्ट में जाओगे तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जर्म फाइटर एंड दांतों की रक्षा करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रिमेंबर नथिंग एट ऑल ओवर देयर, फ्लोरीन इज फाइटिंग। सो फ्लोरीन इज द ग्रेट मराठा वॉरियर। ये किसी से भी कुछ भी, दुनिया में एक ओनली एलिमेंट है इन द एंटायर एटॉमिक टेबल which will never ever give an electron. It can share, but technically it is only going to do what? Snatch the electron. ये हर एक से बस लेना जानता है। Okay? Now, a very very fierce element. So fluorine is the most electronegative element in the entire universe till now discovered. So fluorine बहुत 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 electronegative है। Okay? Then comes the धोनी ग्रुप, ये सारा का सारा धोनी ग्रुप है। So which will be what? Neon. तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। So what was the लर्न करने का तरीका? ली बे, चाइनीज गर्ल, इंडिया क्या खाने के लिए आई थी? बकरा, बकना। क्या किया उसने? क्लीन, उफने। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पीरियड।
Then comes, so guys, this is only a trick to learn. Okay, so let's write the numbers. यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So if somebody asks you what is the atomic number of oxygen, immediately, okay, ha, he, li, be, ba, ku, na, o is 8, and that's all it's done. It's so simple. Correct? Okay. Period number 3 पर आता है. So once again, let's start with the trick. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So it will be 18, then comes 17, then comes 16, then comes 15, 14, 13, 12 and 11. Learn करने का तरीका is very simple. So Somak Ali. Now Somak Ali used to be, and if you feel like, then you can search it on Google. So I am not making up a story. So I'm sorry, Salman Khan. Somak Ali or Somi Ali was technically, one of the affair which actually Salman Khan had, the kind of girlfriend of Salman Khan. So Somak Ali, sodium, magnesium and aluminium. Okay, Somak Ali. Then Somak Ali का किस चीज का बिजनेस था? शिप्स का बिजनेस था. एक्चुअली में नहीं था. दिस इज ओनली लर्न करने का तरीका. सो गाइस रिमेंबर, ये किसी भी चीज के लिए पर्सनल कोई कमेंट्स नहीं है. दिस इज ओनली फॉर द पार्ट ऑफ लर्निंग ट्रिक्स. सोमक अली, उनका किस चीज का बिजनेस था? शिप्स का. एंड क्लियर हो गया. सोमक अली, शिप्स, क्लियर. व्हाई? बिकॉज सलमान खान फाइनली डिच्ड हिम और लेफ्ट हिम. So Somak Ali का जो ships का business था, that got cleared. So stands for sodium, Mag, magnesium, Al, aluminium. So Mag Ali, business, ships, silicon, phosphorus, sulfur. क्या हो गया? Clear, chlorine, argon. Now इनकी तारीफ करना स्टार्ट करते हैं. By the way, मैंने इसका आपको बताया नहीं. Neon is the Dhoni group, that is the cool group number 18. So guys, ये react नहीं करता, इसीलिए normally आपको vapor lamps वगैरह के अंदर काफी यूज होते हैं. neon, argon, xenon. Okay. Na, sodium chloride, sodium hydroxide, याद है caustic soda, वो सारे के अंदर sodium compounds, sodium zincate पढ़ा था आपने. Mg, magnesium. Now magnesium आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, बिकॉज इनके वजह से आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल काफ़ी सेम रहता है, बैलेंस रहता है. देन कम्स एल्यूमिनियम. आपके पास में जितने भी टेक्निकली वायर्स आप यूज़ करते हो, नॉर्मली घर के अंदर डोमेस्टिक वायरिंग में इलेक्ट्रिक करंट में पड़ा था, सारे के सारे एल्यूमिनियम के होंगे. एल्यूमिनियम इज अ मेटल. सिलिकॉन, मैंने आपको बताया था सिलिकॉन वैली येस्टरडे इन कैलिफोर्निया. दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट सिलिकॉन इज टेक्निकली अ सेमीकंडक्टर. ओके, तो इसके चिप्स बनते हैं, नॉट द चिप्स खाने वाले चिप्स, बट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस. ओके, इससे आप गन पाउडर भी बना सकते हो. इट्स हाईली फ्लेमेबल. ब्लैक भी आता है, रेड भी आता है, वाइट एंड येलो के अंदर फॉर्म में भी आता है. एनीवे, देन कम्स सल्फर. ओके, नाउ व्हाट इज सल्फर? सल्फर की आमतौर पे जब भी कभी किसी घर में पेंट हो रहा होता है तो बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है, विच विल ऑलवेज बी ऑफ सल्फर. सो अनियंस के अंदर, गार्लिक के अंदर भी आपको सल्फर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो इसीलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. क्लोरीन, कभी भी अनियंस एंड गार्लिक खा के किसी के सामने मत चले जाना, सल्फर सामने आ जाएगा. क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट. ये आपका CaOCl2 विच इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, उसके अंदर भी यूज होता है. ऑल्सो क्लोरीन नॉर्मली एज अ डिसइंफेक्टेंट आजकल तो बहुत जगह पर यूज हो रहा है. आपने देखा होगा रोड्स पर वो जो स्प्रेयर्स चलते हैं, so they will keep on doing this chlorine. Then comes the word argon. Once again, धोनी ग्रुप का या ग्रुप नंबर 18 का या नोबल गैसेस का या जीरो गैसेस का या इनर्ट गैसेस का एक एलिमेंट है. आगे बढ़ते हैं विद ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 4. So till now we have reached 18. अब आते हैं फोर्थ. नाउ फोर्थ पीरियड में गेम चेंज हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पार्ट, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं आएगा. सो आई एम जस्ट राइटिंग रैंडमली.
18 के बाद में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं विथ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 36. So let's now do the trick. So पहले कक्का, काका, कक्का, कक्का का इस नंबर इज 19 and 20. So कक्का, कक्का जी को क्या हो गया था? इश्क, इश्क, लव. So इश्क, लेकिन हमें थोड़ा सा गंवार बनना पड़ेगा. So कक्का इश्क. We are not going to say इश्क, इश्क, कक्का इश्क. देन कक्का जी जैसे उनको इश्क हो गया था, वो उसके यहाँ पर टी पीने के लिए गए. टी मीन्स चाय. कक्का इश्क टी. टी पीने के बाद में उनको बहुत अजीब सा होने लगा एंड ही फेल्ट वॉमिटिंग, प्यूकिंग फीलिंग होने लगी उनको. उस प्यूकिंग फीलिंग को बोलते हैं वक्रमन. जी घबराना, वॉमिटिंग फीलिंग होना, नॉजिएटिंग फीलिंग, वक्रमन. ओके, वक्रमन. कक्का इश्क टी, वक्रमन. देन उन्होंने उस चाय को गुस्से के अंदर फेंक दिया. फेंको. वो जो गर्ल थी जिसके यहाँ पर गए थे वो गुस्सा हो गई. उन्होंने बोला निकल जाओ यहाँ से. निकुजन, निकुजन, निकल जाओ यहाँ से. निकुजन. सो वंस अगेन टेलिंग यू द स्टोरी. कक्का इश्क टी, वक्रमन, फेंको, निकुजन. निकल जाओ यहाँ से, निकुजन. ओके. एक शो आता है नॉर्मली, पहले सोनी पे आता था या गॉड नोस किस पे आता था, एंड उसके अंदर लोग बाग अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस काफी मतलब करके बता देते हैं. एंड दे यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग एंड देन जजेस यूज्ड टू सिलेक्ट देम. आई थिंक इंडियन आइडल और समथिंग. सो वहां पर इंडियन आइडल में क्या होता था? गाना गाते थे वो लोग. गाना गाओ ऐसे, गा गे ऐसे, गाना गाओ ऐसे बढ़ चढ़ के, गा गे अस से बढ़कर. गाना गाओ ऐसे बढ़ चढ़ के. नाउ लेट्स सी द स्टोरी. K stands for potassium. Calcium stands for calcium. So potassium is with 19. Potassium and magnesium are two very very important ions for your body, for your neurological functions. इनके बिना बॉडी ढंग से काम ही नहीं करती. इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाएगी. यू विल फील लेथार्जिक. Calcium, you already know your entire bony structure is made up of compounds of calcium. Then comes canadium with atomic number 21. World's most strongest metal is titanium. Okay, titanium. Then comes vanadium. Then comes chrome or chromium. आमतौर पे जितनी भी सिल्वर वाली टाइप की शाइनिंग चीजें आपको दिखती हैं, जो गाड़ियों के लोगोज वगैरह दिखते हैं, वो सारे के सारे क्रोम प्लेटेड होते हैं. क्रोम. या कभी दिवाली वगैरह के टाइम पर या ईद के टाइम पर या जनरली कभी भी किसी फेस्टिवल के टाइम पर आपको दिखता होगा वो ड्राई फ्रूट ट्रेज होते हैं. वो सिल्वर कलर की जो ड्राई फ्रूट ट्रेज होती हैं शाइनिंग, दे आर क्रोम प्लेटेड. क्रोमियम. मैंगनीज, Mn मैंगनीज. Fe आयरन. इसको फेरस बोलते हैं, तो फेरस के लिए आयरन. वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कंज्यूमेबल आइटम है ये. ऑलमोस्ट हर चीज में आयरन यूज होता है, ब्रिजेस बनाने के अंदर, हर चीज के अंदर. सो आयरन. कोबाल्ट. ओके, कोबाल्ट. निकल. निकल के पहले पेनी बनते थे, छोटे छोटे कॉइन्स. निकल. कॉपर. ओके, कॉपर आपको मालूम है, कॉपर के वायर्स बनते हैं. कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसीलिए कॉपर के वायर्स डोमेस्टिक के अंदर यूज करने चाहिए. कॉपर. देन कम्स जिंक. देन कम्स गैलियम. देन कम्स जर्मेनियम. जर्मेनियम is once again a semiconductor, same like silicon की तरह. जर्मेनियम. As arsenic. सेलिनियम. ब्रोमीन. ब्रोमीन कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट होता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये उसके साथ में आता है. ब्रोमीन. एंड देन क्रिप्टन. आपको मालूम है सुपरनैचुरल बोल रहा हूँ, द सुपरमैन. तो सुपरमैन एक्चुअली केम फ्रॉम द प्लैनेट क्रिप्टन, दो वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, बट स्टिल ओके लर्न करने का. सो लेट्स नाउ वंस अगेन रिवाइज दैट हाउ विल यू लर्न दिस टेबल. फर्स्ट पीरियड हा ही,
हंसने का तरीका हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड तरीका ली बे चाइनीज गर्ल, इंडिया आई बकना खाने के लिए, बकरा खाने के लिए, पानी में क्लीन किया, साफ किया। देन उफने, हा ही ली बे बकना उफने। लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। वर्ल्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। ओके, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके शायद इस साल तो काम में नहीं आने वाला, बट नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म्ड आएगा। ये जो तीन मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जब भी ये कभी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, then such kind of special bond is known as hydrogen bonding. Okay, आइस के अंदर होता है H2O, H2O. Okay, so ये तीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. Now let's see. Then comes neon. Next का लर्न करने का तरीका, सोमग अल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोमग अल। सोमग अल, सोमी अली का किस चीज का बिजनेस था? शिप्स का, सिप्स, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। देन कम्स, उसने, सलमान खान ने उसको डिच किया, उसने क्लोरीन मतलब क्लियर एंड आर्गन क्लियर कर दिया, सो क्लोरीन एंड आर्गन। देन थी एक और स्टोरी कक्का जी की, कक्का, पोटेशियम, कैल्शियम। देन कम्स कैनेडियम, देन कम्स टाइटेनियम। कक्का जी को इश्क हो गया था, क्या पीने के लिए गए थे? टी, फिर उनको वॉमिटिंग फीलिंग हुई, वक्रमन। पोटेशियम, कैल्शियम, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, iron, वक्रमन, फेको, iron and cobalt, and then comes the word nickel, nickel, and then copper, zinc, feco, nicogen. Then comes the singing part, गाना गाओ ऐसे बढ़ चढ़ के, गा गे अस से बढ़कर, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेल्यूरियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टन। That's all. ओके, सो यदि आपको ये लर्न हो जाता है ऑन द फिंगर टिप्स, गाइस ट्रस्ट मी, 2-3 चैप्टर्स में तो कोई साइंस में आपके मार्क्स कट ही नहीं कर सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड फ्रॉम विच एवर यू आर, वेदर यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड और फ्रॉम ICSE, फ्रॉम CBSE और IB, whichever you feel like, you have to learn this table. Okay, now let's start with the part of, first of all, understanding what do you mean by the word periods. ये रहा फर्स्ट पीरियड, केवल 2 एलिमेंट्स थे। सेकेंड पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एलिमेंट्स थे। थर्ड पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स थे। बट सी द गेम चेंजिंग इन फोर्थ पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So it is 2 8 8 18 18 32 and then incomplete. So remember guys, it's very 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 important. Now let's start first of all with the word atomic size से start करते हैं, because आज चैप्टर कंप्लीट करना है हमें। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का मतलब हो जाएगा द साइज ऑफ द एटम। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द साइज ऑफ द एटम? सपोज दिस इज द एटम, तो जो भी इसका सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, दैट विल बी नोन एज एटॉमिक रेडियस, और इसी पर्टिकुलर पार्ट को आप बोलते हो क्या? एटॉमिक साइज। ओके, नाउ इन्होंने आपको बोल के रखा हुआ है व्हाट विल हैपन इन एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब भी आप कभी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होता है? लेफ्ट टू राइट के अंदर एटॉमिक साइज विल ऑलवेज डिक्रीज, कम होना चालू हो जाता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंफर्म क्वेश्चन होता है बोर्ड्स का, व्हाई विल एटॉमिक साइज डिक्रीज व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। Now what actually happens is, if you see the electronic configuration of lithium, it is 2 1, beryllium it's 2 2, boron it's 2 3, carbon it's 2 4, nitrogen it's 2 5, oxygen it's 2 6, fluorine it's 2 7, neon it's 2 8. Now actually में हो क्या रहा होता है, यहाँ से जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं, जो टोटल जो शेल्स हैं, यहाँ पर भी 2 ही रूम्स हैं जिन्हें हम शेल्स बोलते हैं। ओनली 2 रूम्स, यहाँ पर भी 2 रूम्स, यहाँ पर भी 2 रूम्स, यहाँ पर भी 2 रूम्स, पूरी की पूरी सीरीज में 2 रूम्स हैं। जबकि ऊपर केवल एक ही रूम था, यहाँ पर भी एक ही रूम था। ओनली 1 शेल इज देयर। शेल का मतलब ये वो रूम हो गया जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं।
नाउ सेकेंड पीरियड के अंदर 2 शेल्स होते हैं। अब उन 2 शेल्स में देखो, यहाँ पर 2 1, चलो ठीक है, 2 1 2 2, 2 रूम्स में, एक में दो लोग, 2 के अंदर दूसरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में देखो, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले रूम में 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 electrons 5 electrons, 2 electrons 6 electrons, and so on and so forth. So now what can you see from this? Atomic number is always equal to the number of electrons, and also it is equal to number of protons. Since the shell size is the same, but the number of electrons is continuously doing what? Increasing. But the problem is electrons तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में number of protons भी बढ़ते हैं। क्यों? यदि आपको याद होगा, atomic number should be equals to number of electrons, or it is also equals to number of protons. So that means that when number of electrons बढ़ रहे हैं तो number of protons भी बढ़ रहे हैं, and problem is that protons are far more stronger than electrons. Protons की attractive power बहुत बहुत ज़्यादा होती है, because वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, while electrons न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। So what actually happens is that शेल का साइज तो बढ़ ही नहीं रहा, रूम का साइज तो अभी भी उतना ही है, बट आपका ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो बढ़ते जा रहा है। पहले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स थे? 2, फिर जब लिथियम आया 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। कैन यू सी द साइज ऑफ द हैंड इंक्रीजिंग? सो न्यूक्लियस का साइज बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है उसकी अट्रैक्टिव पावर भी बढ़ती जा रही है। अब न्यूक्लियस तो खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिकॉज उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं विच आर नो चार्ज पार्टिकल्स। नाउ दिस चार्ज पार्टिकल्स आर गोइंग टू कंटिन्यूअसली डू व्हाट? कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट whom? Attract the electrons. If they are going to attract electrons, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और पास में आते रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा? शेल का साइज कम होना चालू हो जाएगा। सो ध्यान रखना, द राइट आंसर इज whenever we go from left to right in a periodic table or in a period, the atomic size would always decrease. Why it will decrease? Because of what? Because there are only the same number of shells, but the nucleus or the power of the nucleus will keep on increasing, and that's the reason why. Okay, so remember that whenever we go from left to right, the atomic size would decrease, वो कम होते जाएगा। तो अभी सपोज कर लो, सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछेगा? They will ask you boron, nitrogen, oxygen and lithium. Boron, lithium, oxygen and nitrogen, इन चारों को अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे पहला वाला पार्ट देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट साइज किसका होगा? लिथियम का। तो पहले मैं किसको लिखूंगा? अब क्वेश्चन पे डिपेंड होता है उन्होंने असेंडिंग बोला है कि डिसेंडिंग। यदि डिसेंडिंग बोला है तो आप कैसे लिखोगे? लिथियम, देन लिथियम के बाद में क्या आता है? बोरॉन, देन बोरॉन के बाद में क्या आएगा? ऑक्सीजन, नहीं नाइट्रोजन आता है, एंड देन ऑक्सीजन। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ दिस पार्ट? होपफुली यू शुड बी। नहीं आएगा तो प्लीज बता देना मुझे। नाउ सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज वुड डिक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स वुड रिमेन द सेम, but the nucleus, the number of protons in the nucleus will keep on increasing, and as a result of this electronic attraction between the protons and the neutrons, the atomic size would shrink. Okay, now what happened to the atomic size down the group? जब मैं top to bottom बोल रहा हूं तो देखो क्या होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2,1, यहाँ पर 2,8,1, यहाँ पर 2,8,8,1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अब आपको क्या लगता है, साइज इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कॉमन सेंस इंक्रीज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर 2,1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2,8,1, यहाँ पर 1 शेल, यहाँ पर 2 शेल्स, यहाँ पर 1, 2, 3 शेल्स, यहाँ पर 4 शेल्स, and that's the reason why. So this simply means that the atomic size would increase down the group but would decrease from left to right in a period. So ये हो गया पहला ट्रेंड। ओके, सो इस पर हैशटैग बना देते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस।
कॉमन सेंस गाइस, द सेम ट्रेंड एज दैट ऑफ एटॉमिक साइज. एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ द center to the shell is known as atomic radius. So what is the atomic radius? Atomic radius is also going to decrease from left to right but would increase from top to bottom. Why will you say that the size of the atomic radius would increase from top to bottom? Because there are subsequent shells which are getting filled up. Shells are increasing. Since shells are increasing, the size would also increase. So atomic radius का भी same trend आता है जो atomic size का आता है. नेक्स्ट पे बात करते हैं वैलेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी? वैलेंसी मींस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. ओके, नाउ लेट्स चेक द वैलेंसी. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो वैलेंसी कितनी हुई? 1, वो एक लूज करेगा. बेरिलियम के पास में 2, वो 2 लूज करेगा. बोरॉन के पास में 3, वो 3 लूज करेगा. कार्बन के पास में 4, ना वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा. नाइट्रोजन के पास में 5 डेफिनेटली 3 अट्रैक्ट करेगा रादर देन 5 लूज करने के बजाय. ऑक्सीजन 6 डेफिनेटली 2 अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ में रादर देन 6 लूज करने के बजाय. फ्लोरीन इज 7, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट डेस्परेटली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट व्हाइल इट इज नॉट गोइंग टू लूज 7. सो इसका मतलब है वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम? इट्स 1. बेरिलियम इट्स 2. Boron, it's 3. Carbon, it's 4. Nitrogen, it's 3. Oxygen, it's 2. Fluorine, it's 1. And neon, it's 0. So what do you think from left to right? The valency in a period from left to right would first of all increase, and then after hitting the number 4, it will decrease. Valency. What will happen to the valency in the vertical column or in the group? Common sense guys, 1, 1, 1, 1, 1. So valency from top to bottom will always do what? Remain the same. So valency will not change because valency remains the same. Okay. Now, so valency from left to right would increase then decrease. From top to bottom will remain the same. Atomic radius and atomic size will decrease from left to right, will increase from top to bottom. नेक्स्ट पर आते हैं द वर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. नाउ यदि मैं बोल रहा हूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, तो सर ये तो बहुत क्लियर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the valence electrons will keep on increasing from left to right, but the valence electrons from top to bottom will remain the same. तो ये भी हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर? मतलब वो कितना मेटल है, मतलब वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. व्हाट फॉर मेटल्स? मेटल्स आर द लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. सो लेट्स सी. सो हु इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मच फास्टर? व्हेन आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक साइज वो डिक्रीज, साइज छोटा होते जा रहा है. तो जो चीज जब छोटी होती जा रही है तो उसमें से कोई एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है कि टफ? कॉमन सेंस गाइस, इट वुड बी वेरी वेरी टफ. एंड दैट्स द रीजन व्हाई द मेटालिक कैरेक्टर और द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वुड डिक्रीज. कॉमन सेंस, लिथियम के पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्री में हैं तो वो लूज कर सकता है. बेरिलियम के पास में उतने ज्यादा हैं लेकिन 2 लूज नहीं कर पाएगा. बोरॉन के पास में 3 है, बहुत डिफिकल्टी होगी 3 लूज करने में. कार्बन तो लूज करता ही नहीं है. So in simple words, what do you think about the metallic character? Metallic character would decrease down the group, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेंगे, तो छीनने वाले लोग हैं. Okay. Now, non-metallic character. अच्छा sorry, metallic character from top to bottom. Metallic character from top to bottom, since science is increasing, so metallic character would also increase. जितना बड़ा एटम होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. Non-metallic character. What do you mean by non-metallic? Exactly opposite. So non-metallic character from left to right would increase, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना है. सो non-metallic character would increase and फ्लोरीन पे आकर के पीक हो जाएगा. ओके. while top to bottom में क्या होगा? टॉप टू बॉटम में non-metallic character would decrease. जो भी ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं जितने छोटे होंगे वो उतना इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेंगे.
सो इट विल बी ए नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नीचे जैसे जैसे आते जाओगे उनकी पावर कम होती जाती है, दे लूज इट। नेक्स्ट, electronegativity. What do you mean by the word electronegativity? Electronegativity is that property of the element because of which it attracts a pair of electrons. कौन कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींचता है? Common sense, guys. Fluorine is the most electronegative element, the great Maratha warrior. Then comes oxygen, then comes nitrogen. So left to right, जब भी आप कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, it will always increase from left to right. While what do you think from top to bottom? Top to bottom, electronegativity will decrease. क्यों? एलिमेंट जितना एटॉमिक साइज बड़ा होते रहता है उतनी उसकी खींचने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी. So that's all. Now let's move on to the word shells. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, shells अलग अलग टाइप के होते हैं. हर एक शेल को सिंपल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको कैलकुलेट करने का तरीका इज 2n स्क्वायर. सो लेट्स पुट द नंबर 1. तो सपोज करो मैंने n की जगह पर मैंने 1 पुट किया तो आंसर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज 2. तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट n इक्वल्स टू 2? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 8. सो देखो थर्ड वाले में 8 है. इस तरह से शेल्स बढ़ते रहते हैं आपके. सो n इक्वल्स टू 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 into 2 is 18 and n equals to 4 आ गया तो 4 का square 16 to the 32. That's all that was in. So with this guys, I would like to stop this lecture right over here. So guys, please understand, कभी किसी ने पूछा what are the maximum electrons in K shell? तो K का मतलब नंबर 1, L का मतलब नंबर 2, M का मतलब नंबर 3, N का मतलब नंबर 4. तो उनकी जगह पर ये वैल्यूज डालते रहना है, आंसर निकल के आ जाएगा. So that's all guys, from my side this topic is done and set. Enjoy. Thank you. Bye.